Okay, just let's see. Just 1 minute I will wait for them. In 1 minute I will start the class. Right? Yes, sir. How are you all? Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. Okay, well, welcome. Monica, how are you? Fine, sir. Now, fine. Okay. Welcome everyone. Have you purchased the books or not? Not, sir. Do you have books English? Everyone? My sister. Ah, fine. Yeah, right. Yes, you are correct. Yes, sir, I have book. Good. Good. Here I would like to just brief in 2 minutes and I'm waiting for them, rest of the children. Here you have been taught whenever you are writing here in the class, just use the simple past tense or just past tense means I was present, right? Yeah, I I attended the class. Yeah, I have attended the class. Only the 3 sentences are correct here. I was present. I attended. Past tense. Attended. Yeah, I have attended. Right, na? Okay, dear students. So let us start today. Once again, I'm going to start this. Yeah, good. Thank you. The same chapter, dear students. I'm going to start here. Right? We are not afraid to die if we are together. We are not afraid to die if we all are together. You are studying here the story of a family. This is a story of his courage. How the brave it family was when they were on a journey. A lots of problems are facing. So many troubles are coming on the way. Even they are not giving up because they are united. All the family are together and all the members of the family have the same courage. It shows their patience. In this way, they are going ahead. In spite of lots of problem, they are not giving up. प्रॉब्लम तो उनके लाइफ में बहुत आए, आ भी रहे हैं, आपने देखा, लेकिन लाख तूफान आने के बावजूद भी ये जो फैमिली है अपनी यात्रा को वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका एक टारगेट है, इनका एम है कि हम पूरे विश्व का भ्रमण करके रहेंगे इस पूरे इस बोट पर. एंड नाउ दे आर गोइंग अहेड. So in the last story I taught you till the 3rd January. Now we will study about the 4th January and 5th January, what had happened, whether they reached their target or not. So let us see here. And now I am going to share. Yes, we are not afraid to die if we can all be together. Composed by Gordon Cole and Alan Est. So let us see here, children. Just I will make you understand where we are in the story. Just let me find. Yes. On January 4. From here, I will start it.
right? On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. As you know that how the water is leaking in the boat. Even they are doing a so work for keeping the water close. Many types of instrument they have. They are using it. Even then, some are leakage in the boat and water is coming. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. The pumping is continuous. The last 36 hours of continuous pumping means water is going out. Motor is running here. Then even there is a few centimeters of water is rest there. अभी भी उनके नाव में कुछ सेंटीमीटर पानी बचा हुआ है, जबकि पिछले 36 आवर्स से कंटिन्यू पंपिंग हो रहे हैं, मतलब मोटर पंप चलाए जा रहे हैं पानी को निकालने के लिए. Now we had only to keep pace with the water still coming in. जहां से अब पानी आ रहा था, केवल उस होल को फाइंड आउट करना था कि आखिर पानी का लीकेज अब कहां से आ रहे हैं. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull. Here the rigging means the ropes and wires. Pressure on the rigging means होते हैं ropes and wire, जो रस्सी होते हैं ropes and wires. As you know that they have taken all their equipment, instrument with them in the journey. So they have all the things. So here rigging means ropes and wires. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. Means sometimes there is a pressure on the rigging. जो rope है, जिस रस्सी से वो बांधे थे उस कैनवास को, उसके ऊपर जो है प्रेशर आ रहे हैं हवा के कारण. So we hoisted the storm jeep. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. So we hoisted. Hoist मतलब क्या होता है? लहराना. जैसे झंडे फहराए जाते हैं ना बेटा, तो जो फ्लैग होस्टेड होते हैं, तो यहाँ होस्टेड है मतलब कोई चीज है ये हवा में लहरा रहे हैं. क्यों लहरा रहे हैं? सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीव एंड हेडेड फॉर वायर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. उन्हें ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर आइलैंड्स है, दो छोटे छोटे क्या है आइलैंड्स है. तो आइलैंड्स पर तो कुछ लोग रहते हैं. इन्हें ऐसा लगा कि someone can see us and we can get the help from there. तो उन्हें हमें हेल्प मिल सकता है क्योंकि पास में सामने में कोई आइलैंड दिखाई पड़ रहा था. उस आइलैंड की तरफ उन्होंने अपना जो झंडा था उनके पास उसको वो लहरा रहे हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, नाव है. मैरी फाउंड सम कॉर्न, beef and crackers, biscuit, and we ate our first meal in almost 2 days. कहा कि 2 दिन हो गए थे उन्हें बिना खाए पिए, 2 दिन में पहली बार वो खा रहे हैं आज. But our respite was short-lived. Here the word has come respite. Respite मतलब relief. Yes friends, here the word has come respite, right? Respite means होते हैं relief. Got? But our respite was short-lived. मैंने हमारा जो relief था, जो थोड़ा बहुत relief हमें मिला पानी को बाहर निकालने से, थोड़ा बहुत जो relief मिला वो short था. ज्यादा दिन तक हम relief में नहीं रहे. Means problem came again. How the problem came again? Let us see. At 4 p.m. back
At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. 4 बजे के करीब शाम में फिर काले काले बादल जो है पीछे से दिखाई पड़ने लगे और 1 घंटे के अंदर में 40 knots and the seas were getting higher और 40 मीटर के 40 से पर किलोमीटर के रफ्तार से वो जो है तुरंत समुद्र में लहरें जो है ऊंचा होने लगी. The weather continued to deteriorate throughout the night. Deteriorate means get worse. The word here deteriorate. Deteriorate means get worse. Bad से worse हो गया. Means और weather जो है वो खराब हो गई. To deteriorate throughout the night. The weather continued to deteriorate throughout the night. पूरी रात जो है वेदर खराब रहा. And by dawn on January 5, our situation was again desperate. And children, 5 जनवरी आते आते जो उनके सिचुएशन थे वो और डेस्परेट मतलब चिंता में ला दिए. मीन्स और परेशान करने वाले मौसम फिर से आ गए उनके पास. When I went in to comfort the children, John asked. When I went and to comfort the children, जब मैं बच्चों को उनके हाल चाल जानने के लिए गया, जॉन आस्क तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, हमने उसे आश्वस्त किया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. बट डैडी ही वेंट ऑन, वो बार बार फिर बोलते रहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यदि हम सब एक साथ हैं, मम्मी भी, पापा भी, सू भी है और मैं भी हूँ, तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो हमें मरने से डर नहीं लगता है, हमें मौत से डर नहीं लगता है. मीन्स बच्चा जो है वो अपने फादर को जो है इंकरेज कर रहा है. देखिए कितनी अच्छी बात है. लेट्स सी हियर. Here the child is encouraging his father. कि पापा don't worry, we all are together and if we are together, we can't die. Right? Yeah. I could find no words with which to respond. Means पापा ने कहा I couldn't find words with which to respond. मेरे पास शब्द नहीं था अपने बच्चे को जवाब देने का. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weekend start box side. बट मुझसे जितना हो सकता था मैं उसके कैबिन को, बच्चों के कैबिन को टोटली प्रोटेक्शन दे दिया. चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह से उसे बच्चों को आश्वस्त कर दिया कि तुम्हारे कैबिन में कुछ होने वाला नहीं है. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. I decided to heave. I decided to heave. Heave means to raise or lift with wire होता है. Heave, H-E-A-V-E है. Here, H-E-A-V-E. Heave means to raise or lift with wire. मैंने कुछ तार उठाया अपने साथ. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. जो अनडैमेज पार्ट थे, जो नुकसान नहीं थे, मैं उसकी तरफ वायर लेके बढ़ा जिससे कि आने वाली जो लहरें हैं ऑन कमिंग वेव्स उससे हम मुकाबला कर सके. तो ये सब लेकर इंस्ट्रूमेंट जो है मैं उस साइड में आगे बढ़ गया. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नाइलन रोप and 222 little plastic barrel of paraffin. What I took with me?
मैंने क्या किया लिया, वो जो अगेन जो लहरें आ रही हैं समुद्र में, उससे बचने के लिए जहाज को सेफ्टी पर्पज से मैंने ये सब सारे लेकर तैयार होगा। एंकर ऑफ हैवी नाइलन का रोप और 222 लीटर और 22 लीटर का 2 ठो जो है प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन मैं लेकर के और उसे चारों तरफ से क्या करने लगा, मैं मरम्मत करने लगा उसको। ठीक है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम को मैं और मैरी दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ करके बैठे हुए थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken plank, और जो पानी है अधिक से अधिक पानी जो है जो ब्रोकन टूटा हुआ जो प्लांक था उसकी तरफ से जो है वो अंदर इन कर रहा था। हम दोनों शाम का समय था, मैरी एंड आई बैठे हुए थे एक साथ हाथ में हाथ मिला करके, और जो पानी जो है अधिक से अधिक मैक्सिमम पानी मतलब आने लगा, और जो है पानी ज्यादा पहले से ज्यादा पानी आने लगा जहाज में। We both felt the end was very near. We both felt the end was very near. हम लोगों ने महसूस किया कि अब शायद हम लोग बच नहीं पाएंगे। We both felt the end was very near. हम लोगों ने सोचा कि लग रहा है कि अब जो है मृत्यु जो है, अब मौत जो है बहुत पास में है। Do no children why they thought like this? Because instead of so work, again and again the water was coming inside the boat and the boat was becoming heavy. So finally they thought, what should I do? And we did many work. Even the water is not stopping. It is coming. And now it is in the more amount. The water has started to come inside the boat. So finally they thought, कि आई थिंक वी आर नॉट अलाइव मोर। वो दोनों सोच रहे हैं कि अब हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। यस, बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, जो नाव है वो तूफान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरी नाव जो है राइड रोड स्टॉर्म बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक तूफान जो है वो जहाज की बिल्कुल पास आ गई। विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंस। सेक्सटेंट जो है बेटा लिखा है ना, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या है? एक एन इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री। ये एक सेक्सटेंट क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन का पता बताता है। जैसे कोई जो नाविक होते हैं, क्योंकि उधर घड़ी तो होता नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि ये डायरेक्शन का पता चलता है और टाइम का पता चलता है, तो वो अपने साथ वो लेकर के लोग चलते हैं जहाज में। तो वो उन्होंने देखा, उस सेक्सटेंट पर देखा, अचानक उनकी नजर पड़ी। तो जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने उस पर रीडिंग देखा। बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैंने अपने चार्ट रूम को देखा जो चार्ट पेपर ले गए थे। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, फिर मैं विंड के ऊपर काम करने लगा। मीन्स ये सबको एक साथ मैं कैलकुलेट करने लगा। कैलकुलेट करने का मतलब है कि मैंने आइडिया लेना शुरू किया कि अब हम लोग कितना दूर हैं और किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो पहले तो सेक्सटेंट पर इन्होंने अपना रीडिंग देखा,
फिर इसके बाद जो है चार्ट जो ले गए थे वो देखे, फिर वो विंड के स्पीड पर काम करना है कि हवा की स्पीड कितनी है और हम लोग कहाँ तक पहुंच पाएंगे, वो सब क्या करने लगे, वो गेसिंग करने लगे। चेंजेज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और इस प्रकार से हमने सबको मिला करके एक कैलकुलेशन किया। जब सारे चीज मिल गए तो हमने कैलकुलेशन किया अपने पोजीशन का कि हम कहाँ पर हैं। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. इतने किलोमीटर समुद्री यात्रा करने के बाद 65 किलोमीटर वाइड एक आइलैंड दिखाई पड़ी। समुद्र की चौड़ाई इतना है और वहाँ जो आइलैंड है वो केवल 65 किलोमीटर का है, और जबकि समुद्र की जो डिस्टेंस है 1,50,000 है, और जो वो आइलैंड है वहाँ एक 65 किलोमीटर वाइड जो है चौड़ा एक आइलैंड दिखाई पड़ा। While I was thinking, Sue moving painfully, जब मैं सोच रहा था तो Sue moving painfully, अचानक सू को वो पेन होने लगा। As you know that कि already she have injured, पता ही है आपको, तो वो पहले से इंजर्ड है, तो क्या है उसे आप पेन होने लगा। ज्वाइंड मी, वो मेरे साथ आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen, उसका जो लेफ्ट साइड का हेड था वो स्वेलिंग हो गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी जो आंखें थी वो जो काले पड़ गए थे वो धीरे धीरे जो है वो और जो है स्वेलिंग होने लगा। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मेरे को एक कार्ड दिया। जो सू है उनकी बेटी पापा को एक कार्ड दे रही है। वो कार्ड क्या है, कार्ड पर क्या लिखा है, लेट्स सी। यस, कार्ड सी हैड मेड, ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन caricature of Mary and me with the words here are some funny people। जो कार्ड था उसके ऊपर एक कार्टून बनाई थी। कैरिकेचर मतलब कार्टून, किसका कार्टून बेटा, मैरी एंड मी, मतलब कि मेरे वाइफ का और मेरी बेटी जो है एक पोस्ट कार्ड पर क्या की थी, कार्टून बनाई थी और कार्टून पर लिख दी थी। कार्टून पर क्या लिखी है यहाँ, वो लिखती है यहाँ, देखेंगे आप कितना फनी चीज है। हेयर राइट, लिखती है हेयर आर सम फनी पीपल, मैंने हम दोनों को कहती है कि ये दोनों फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इससे आपको हंसी आई। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो जोर जोर से हंस पड़ा। मैं अपने बेटी की इस करामात पर मुझे हंसी आ गई। Here do know children why it is happening like this, actually they all are in pain, so between this the daughter wanted to give some relaxation. She wanted to see the smile on the face of their parents, that's why she made a cartoon of the parents। वो चाहती थी कि ये इतने दिनों से हम लोग हंसी जो है हंसना भूल गए हैं, गम के कारण हंसना भूल गए हैं, तो हो सकता है मेरे पेरेंट जो है इस बहाने क्या है उनके चेहरे पर हंसी आएगी। इसलिए वो गर्ल जो है कितनी अच्छी लड़की है, देखो वो चाहती है अपने पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान देखना, और इस प्रकार वो फनी फेस बनाती है ताकि उन्हें हंसी आए, उनके चेहरा पर मुस्कान आए। फाइनली जो है आई मतलब जो है वो लेखक जो है वो हंस पड़ते हैं, राइट। इनसाइड वाज अ मैसेज, और अंदर में एक मैसेज भी लिखा हुआ था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम बहुत प्यार करते हैं आप दोनों से।
So this card is to say thank you and let hope for the best. यह कार्ड के द्वारा हम आप दोनों को थैंक यू कहना चाहते हैं और आगे आने वाले समय के लिए बेस्ट ऑफ लक. Somehow we had to make it. किसी तरह से हमें इसे सफल बनाना है. So dear students, you saw how the Sue has written a very beautiful card with funny cartoon. I checked and rechecked my calculation. अब क्या हुआ कि मैं जो है अपना कैलकुलेशन जो है फिर से चेक करने लगा. अगेन मैंने तो कैलकुलेशन किया ही था और फिर जो है मैं कैलकुलेशन को फिर से जो है चेक करने लगा. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. उसी रास्ते में क्या हुआ कि हम अपना कंपास भूल चुके थे. तो कंपास भूलने के कारण जो है करेक्ट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी. I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. उससे मैग्नेटिक वेरिएशन का पता नहीं चल रहा था. मैंने कंपास जो है वो भूल दिया था, कहीं पर वो खो गया. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flew through this part of the Indian Ocean. फिर मैंने अनुमान लगाया, दूसरा अनुमान लगाया. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current. कि अब मैंने अनुमान लगाया कि फिर जो करंट है वो पश्चिम की तरफ से आएगी, which flow through this part of the Indian Ocean, जो कि भारतीय जो सागर है उस साइड से हमें वो प्रभावित करेगी. मतलब अनुमान लगा लिया कि इस बार जो लहर है वो इस साइड से आएगी. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. मैं करीब 2 बजे के अराउंड मैं गया लैरी के पास. लैरी तो पता ही है ये क्रू मैन थे. और मैंने कहा कि देखो जहाज को 185 डिग्री पर आप उसे मोड़ दो. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. उसने अंदाज लगाया कि यदि तुम जहाज को 185 डिग्री पर यदि तुम मोड़ देते हो, इसे फोल्ड करते हो, जहाज को टर्न ले लेते हो, तो मुझे उम्मीद है कि करीब 5 बजे के आसपास में हम लोग आइलैंड की तरफ पहुंच जाएंगे. मैंने कैलकुलेशन करके क्रू मैन को दे दिया कि यदि ऐसा करते हो, जहाज को इतने डिग्री पर घुमा लेते हो, तो मुझे उम्मीद है कि 5 अराउंड शाम तक हम लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बेलो. फिर मैं नीचे गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ. मैं कुछ उछला और फिर मैं कुछ आराम करने लगा. व्हेन आई वोक, डोज मतलब होते हैं आराम करना बेटा, अमेजिंगली डोज ऑफ मतलब वो कोई रेस्ट ले लेना. व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. जब मैं आराम करने के बाद यदि मैं उठता हूँ, आई वोक इट वाज 6 p.m. तो 6 बज रहा था. एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड. मेरे को समझ में आ गया कि लग रहा कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया, आगे बढ़ गया. एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द ईस्टर्ली विंड. और फिर अब हम वापस आ भी नहीं सकते हैं. एक तो हमें नींद आ गई और उसी नींद में हमारी जहाज जो है आगे बढ़ गई. आइलैंड से आगे हम बढ़ गए. मेरा कैलकुलेशन था कि 5 बजे के करीब आइलैंड तक पहुंच जाएंगे. इधर मैं सो गया और क्या हुआ कि जहाज जो है आगे बढ़ गई. 6 बज रहे हैं अब पीछे वो ला भी नहीं सकते थे.
क्योंकि वो लहर थी ना समुद्र में, तो लहर के कारण जहाज को फिर बैक की तरफ लाना, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ब्रिंग बैक. We could not hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shoo was right behind him. अचानक, at that moment, a tousled head appeared by my bunk. अचानक मेरे पीछे किसी का हेड टकराता है. Can I have a hug? क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा. शू वाज राइट बिहाइंड हिम, और शू जस्ट उसके राइट में थी. व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? व्हाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? हमें क्यों अभी हग करना चाहिए? आई आस्क. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. क्योंकि आप इस संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं. एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. मेरा बेटा ने जवाब दिया, इस संसार में सबसे अच्छा डैडी तो है ही, और सबसे अच्छा कैप्टन भी है. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. नॉट टुडे, आज नहीं जॉन. आई एम अफ्रेड, अभी तो मैं भयभीत हूँ. आज नहीं, फिर कभी हम गले मिलते हैं. तो आपने देखा बेटा यहाँ क्या हो रहे हैं. उनके जो बच्चे हैं, कंटिन्यूअसली दे ऑल आर इंकरेजिंग देयर पेरेंट्स. और इधर पापा भी उनके हालचाल पूछने के लिए उनके केबिन में जाते हैं. यू ऑल हैव सीन हाउ continuously his father are in touch of both the son and daughter. Continuously he going there, he asking how they are, and this side the children are encouraging their parents. और बच्चा भी बार बार उनके ये encourage कर रहा है. Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. आप आइलैंड पे आ गए हैं. What? मैंने चिल्लाया. क्या? आइलैंड पे आ गए? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. देखिए पापा जी, आप देखिए तो सामने में आइलैंड है. दे कोरस्ड, एक साथ वो चिल्लाए. एज बिग एज अ बैटल शिप. जैसे कोई बैटल में कोई शिप है जो बैटल जीत के आता है युद्ध को, हम लोग एक साथ चिल्लाए. हम तो सोए थे, अचानक उठे. मैंने घड़ी में समय देखा, 6 बज रहा था. मेरे को लगा कि मेरी जहाज जो आगे बढ़ गई है, बट हमारे बच्चे ने एहसास दिलाया कि पापा इधर देखिए, ये हम आइलैंड के पास आ चुके हैं. आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इली एम्स्टर्डम. इली एम्स्टर्डम ये आइलैंड है यहाँ, राइट. इट वाज ओनली अ bleak piece of volcanic rock with little vegetation. थोड़ा बहुत झाड़ियां थी, लिटिल वेजिटेशन थे, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे ना लगे हुए थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था. इट मीन्स दैट द होल द फैमिली वाज ऑन द आइलैंड. ये पूरे जो लोग थे वो आइलैंड पर पहुंच चुके थे. We anchored offshore for the night. करा कि हमने जहाज को ऑफ शोर, जो शोर मतलब बैंक ऑफ द सी, किनारे जो है खड़ा कर दिए पूरे रात में. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they help us ashore. और उस टापू पर जो 28 लोग रहते थे, वो सुबह में सभी ने हम सबको चीयर अप किया. एंड दे हेल्प अस ashore. और बाहर तट के ऊपर तक जाने में, उस आइलैंड पर जाने में वो सब हमें मदद किए.
with land under my feet again. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Corby. Cheerful and optimistic under the dearest stress. जैसे होते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट मीन्स उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक मैंने आशावादी, उम्मीद की किरण, मतलब उन्हें अपने आप पर यह पूरे उम्मीद था कि मैं ये काम करके रहूंगा. Now cheerful and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. देखिए, in the final last line, he is going to thanks all the family member. He is saying about his wife, then daughter, everything he is saying, how they cooperated him to win this voyage. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who didn't want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. जाके उससे ऑपरेशन हुआ और ये देखिए रिमूव है रेकरिंग ब्लड क्लॉट, ब्लड जो है जमा हो गए थे उनकी स्किन पर. एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die. मेरा बेटा जो कि मात्र 6 साल का था, उसे भी मरने का कोई भय नहीं लग रहा था. Dear friends, you saw the whole family, in spite of so many troubles, so many difficulty, they win. Now they are winner. They completed the journey. What the target it was owned by them. So it was the lesson. We are not afraid to die if we all are together. In this chapter, dear students, the writer have tried to show that union is strength. एकता में बल होती है. If we are united, we can win a big fight. No troubles can stop our path. Where there is will, there is way. जहाँ चाह है वहाँ राह. Union is strength. Union is power. This was the moral of this lesson. So here, today this lesson is going to be over here. Hopefully, you have all understood the chapter very well. Right? Now let's see. Here I just would like to take a screenshot of your attendance today. Here now, who is Ganesh Mishra is here? In front of Sir, Dipanshu. Aradhana, sir. sorry. Ganesh Mishra is Dipanshu. Acha, fine. Sir Dipanshu. Fine. Okay, thank you. Because on the screen it is written the Ganesh Mishra, so I couldn't find who is there, right? Okay. Here गौतम जी हैं, गणेश जी हैं, और उनके दीपांशु जी से आपने कहा, मोनिका हैं, तरुण लोहिया, वंश लोहिया मीन्स